Hey students, welcome to this YouTube channel, The Quest, Maths for All by Toor sir. This is Dr. RPS Toor. थानू बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आज करवाने जा रहे हैं. So our question number 10 is, its statement is, a given function is having two functional values x plus 2 or x minus 2. X plus 2 is when x is less than or equal to 1, or x minus 2 is when x is greater than 1. ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ. ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਾ ਵਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਬੁੱਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਵਰ ਪਲੱਸ 2 ਕਲਾਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਸੀ ਬੀ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 0. ਠੀਕ, ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ 1 ਇਜ਼ ਦ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੇਅਰ. ਸੋ ਸੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1. ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਫ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਫ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ c plus 2 ਆ ਜਾਏਗਾ. ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਇਜ਼ c plus 2. ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਲਓ, x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ c fx, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ c, ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਲਵਾਂਗੇ x plus 2, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c plus 2. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ, therefore fx is continuous for all real numbers. ਕਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ? ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ. ਆਹ ਵਾਲੇ c ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ. ਠੀਕ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ. ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, let c is greater than 1, greater than 1, because 1 is the considering point here, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 1 ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ c ਮਾਈਨਸ 2, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ. ਠੀਕ, ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ c fx, limit x approaches to c plus x minus 2. so here we have c minus 2. ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ. ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? fx is continuous for all real numbers greater than 1. ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫੋਰ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, x1 ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ c1, ਜਦੋਂ c ਕੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ c ਦੇ ਲਈ. ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ x approaches to 1 minus fx. ਹੁਣ 1 ਮਾਈਨਸ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ x ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ? x ਲੈਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ x ਮਾਈਨਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ x ਪਲੱਸ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ x ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੇਅਰ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਤਾਂ x ਪਲੱਸ 2 1 ਪਲੱਸ 2 ਵਿਲ ਬੀ 3. ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ. ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 1 ਪਲੱਸ fx, x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 1 ਪਲੱਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ x ਮਾਈਨਸ 2. 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ 1. ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਐਟ 1 ਤੇ. ਐਟ 1 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 plus 2 is 3. ਸੋ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
हाँ फंक्शनल वैल्यू ਦੇ इक्वल जरूर है, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस ਦੇ इक्वल नहीं है, बिकॉज x अप्रोचेज टू 1 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू x अप्रोचेज टू 1 प्लस fx। ठीक है, 1 माइनस प्लस ਦੇ लिमिट ਦੇ इक्वल नहीं है, देयरफॉर fx is not continuous, not continuous at x equal to 1। सो 1 वाले पॉइंट्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, point of discontinuity is x equal to 1। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, दिस इज़ अवर x एक्सिस, दिस इज़ अवर y एक्सिस। ग्राफिकल वैसे शो करना कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जामिनेशन ਵਿੱਚ आ जाता है कि ਤੁਸੀਂ डिसकंटीन्यूअस ਜਿਹੜਾ ग्राफ है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ग्राफिकली रिप्रजेंट करके दिखाओ, ਉਹਦਾ ग्राफ भी दसो, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ y इज़ इक्वल टू fx इज़ इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, y एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, फॉर y इक्वल टू 0 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x प्लस 2 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, यानी कि x माइनस 1 ਦੀ तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, और फॉर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस पासे ਜਦੋਂ x ग्रेटर पॉइंट ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਭਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ y इज इक्वल टू x माइनस 2 है ना, तो y की वैल्यू 0 पुट करांगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, यानी कि x प्लस 2 पासे और x माइनस 2, एक तो आ वैल्यू मिल गई आपां नूं। हुण आपां देखदे हां कि जदों x की वैल्यू 1 है उदों की आ रहा है +3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ मैं ग्राफ नूं फिल करन दे लई, राइट। तो सब तो पहला आप हो गया ओरिजन, दिस इज़ 1, दिस इज़ योर 2, और लैफ्ट साइड के उपर कितना आ रहा है, लैफ्ट साइड उपर भी वैल्यू आ रही है ग्रेटर दैन 1 जा रहे हैं, तो इतने y की वैल्यू 0 पुट की तो x2 आ गया, और इधर लैस दैन ਲਈ x -2 आ रहा है, तो आ चीज़ और -2, राइट, आ चीज़ आ गई अपने को। हुण आपां ये देखते हैं कि x1 ਦੇ ਲਈ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई y दी, फंक्शन आप किवें डिनोट करते हैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, हुण फंक्शन वैल्यू आप देख रहे हैं जो x1 है, फॉर x इक्वल टू 1 y इज़ इक्वल टू fx, और x की जगह 1 भर रहे हैं, तो 1 + 2 कितना आ गया 3, यानी कि जो x 1 है तो y की वैल्यू 3 है, 1 2 और 3, आ चीज़ है, आ पॉइंट आ गया, इन्हों आप मिलावांगे हौली हौली। ठीक है, और जदों x 1 प्लस तो अप्रोच कर रहा है इधरले पासे, ठीक, तो इत्थे x की वैल्यू कितनी आ रही है, जदों x की वैल्यू 1, आ चीज़ एस पार्ट दे विच भरी है तो 3 आ गई, x की वैल्यू 1 इत्थे भरांगे तो कितनी आएगी, y इज़ इक्वल टू f1, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो -1, तो फंक्शन की वैल्यू किन्ना दे बिटवीन रह रही है -1 और 3 दे विच, यानी कि इत्थे तो 3 है ना, ये y दी तरफ, और इधर कितना है नीचे -1 और -2। ठीक है, तो इत्थे रह रही है। हुण आ जाओ तुसी कि आपां
x1 है तो -1 है, x1 है तो 3 है, आ चीज़ x1 है तो -1 है, x1 है तो 3 है, आ पॉइंट ने दो वैल्यूज़ आ रही हैं ना, -1 और 1, नो x इज़ 1 और y इज़ -1। ठीक, हुण आ दो अलग अलग पॉइंट्स ने जो कि कोइंसाइड नहीं कर रहे, ऐस करके डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। लेकिन आप हुण देखते हैं कि इन्हां दे जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करांगे या ग्राफ ड्रा करांगे, किस तरह के ग्राफ आएंगे, जदों x ग्रेटर दैन 1 जा रहे हैं और x लैस दैन 1 आ रहे हैं, तो फिर ध्यान नाल देखो की आ रहा है, राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर दैन 1 है ना, x ग्रेटर दैन 1 राइट, इधरले पासे जा रहा है। देखो स्टूडेंट्स, वैन x इक्वल टू 1 तो उत्थे फंक्शन की वैल्यू आप आ 3 कदों आई है, जदों आ वाली कंडीशन यूज़ की है, वैन x इज़ लैस दैन 1, x लैस दैन 1 का मतलब की होंदा है नैगेटिव साइड पासे जा रहा है, तो किहड़े पॉइंट नूं कट कर रहा है, x1 है और y की वैल्यू कितनी है 3, तो इस पॉइंट तो लैके वो नैगेटिव साइड नूं जा रहा है। तो अपने को ग्राफ किस तरह का बनेगा, देखो फ्री हैंड नाल इहनूं मिलाने आ बन जाएगा, हुणे नैगेटिव साइड जा रहा है सारे पॉइंट्स, इनू इनफाइनट लाइन लगांगे तो अगे अगे जाएगा तो नैगेटिव साइड भी जा रहा है। और दूसरा जो आप लै रहे हैं, वैन x इज़ ग्रेटर दैन 1, तो जदों x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी आ रही है -1, कदों 1 आ रही है, जदों आप इहदे विच भर रहे हैं 1 -2 इज़ -1, और जा किस पासे रहा है, ग्रेटर दैन 1 पासे, ग्रेटर दैन 1 का मतलब है पॉजिटिव साइड, तो उदों कित्थों मैच कर रहा है, x की वैल्यू 1 है और y की कितनी है -1, आ चीज़। तो हुण ये ग्राफ जो बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, इत्थों जाएगा ये पॉइंट और पॉजिटिव साइड जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव साइड आ जिवें इनू आप अगे ले लैंदे आ लाइन नूं, तुसीं इनफाइनाइट पासे लवोगे तो ये इस पासे जा रही है, पॉजिटिव साइड जा रही है, ठीक है, और इस पॉजिटिव साइड में आप की कहांगे, x इज़ ग्रेटर दैन 1, और इस नैगेटिव साइड में आप की कहांगे, x इज़ लैस दैन 1। बोलो समझ आ गया। तो दोनों पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, कोइंसाइड का मतलब है एक जगह से नहीं आ रहे, तो इसका मतलब अलग अलग पॉइंट आ गए, दिस मीनस दैट 1 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नहीं आई ये, अलग अलग पॉइंट के उपर x के सेम पॉइंट के उपर y की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, इस करके डिसकंटीन्यूअस है। बोलो समझ आ गया। तो ग्राफ जिहड़ा है वो ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर तुहानूं एग्जामिनेशन कहता है कि ग्राफ बनाओ या डिसकंटीन्यूटी समझाओ ग्राफ के उपर, तो तुसीं दस सकते हो। 11th एग्जाम्पल दे विच भी तुसीं सेम जो मैं तैनूं 10th एग्जाम्पल समझाई है सेम कर सकते हो। लैट्स चैक विद द सेम मैथड हेयर। यू हैव गिवन x+2, ये थोड़ा मैं सारा मतलब टोटली जो है वर्डिंग यूज़ नहीं करते, मैं थोड़ा हिंट दे देना और सेम स्टैप्स के उपर जल्दी कर लेने इस क्वेश्चन को। x इज़ लैस दैन 1 एंड 0 इफ x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, एंड x-2 इफ x इज़ ग्रेटर दैन 1, ठीक है। वो चैक करने को कह रहा है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी। ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी दे विच सब तो पहले तो तुसी एक जनरल पॉइंट लवोगे जो इक्वल x इक्वल ना होवे, ठीक है। तो x एक c मान लेने आप, लेट c इज़ लैस दैन 1, आ वाली ब्रैकेट ले लेने, ठीक है, जिदे च सारे रियल नंबर जो एक तो घट ने, तो लिमिट ले लो फिर x अप्रोचिज टू c f(x), x अप्रोचिज टू c x+2, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी c+2। हुण c लैस दैन वाले पॉइंट ले रहे हैं तो आ वाला भी यूज़ नहीं कर सकते, आ वाले भी यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इनू यूज़ करांगे। तो लैस दैन दे लई अगर फंक्शनल वैल्यू आप कढ़ रहे हैं तो किहड़ी वैल्यू यूज़ करांगे, आई c+2। देखो आ इक्वल आ गया ना, ठीक है। हुण c ग्रेटर दैन 1 ले लो, c ग्रेटर दैन 1 दे लई की है, आ चीज़ है लिमिट x अप्रोचिज टू c f(x), x अप्रोचिज टू c x-2, तो आ जाएगी c-2, और एफ सी कितना आएगा फॉर c ग्रेटर दैन 1 दे लई
वो भी c माइनस टू आ जाएगा, तो आ भी इक्वल आ गया। फिर की लिखांगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स c लेस देन 1 एंड c ग्रेटर देन 1। यानी कि ऑल पॉइंट्स का मतलब है नेगेटिव रियल नंबर्स एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स, उन्हां दे लई ए कंटिन्यूअस है। चलो हुण फिर c एक दे लई चेक कर लो, फिर फॉर c इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि x लेस देन 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो की आएगा, फिर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट LIM, मैं इत्थे LT यूज़ कर लेना, तुसी भी यूज़ कर सकते हो वैसे, तो बुक दे विच LIM लिमिट यूज़ कर रहा है ना। x अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस का मतलब आ वाली ब्रैकेट ले रहे हैं और ये फंक्शनल वैल्यू आप आ यूज़ करांगे, फंक्शन की वैल्यू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो वैल्यू पुट करने तो बाद 3 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट लवो, राइट हैंड लिमिट है LIM x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए आ लेनी है x माइनस 2, पुट करांगे तो -1 आ जाएगा। देखो आ भी बराबर नहीं आ रहा। फंक्शनल वैल्यू कदों आ रही है, जो x इक्वल टू 1 है, यानी कि c की वैल्यू जो 1 है, फंक्शनल वैल्यू 0 आ रही है, तीनों ही आपस में बराबर नहीं आ रही हैं। सो एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा हो गया। और x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। सिर्फ वो कह रहे हैं ना कि पॉइंट कड्डो किहड़े पॉइंट्स ने डिसकॉन्टिन्यूअस दे, तो सिर्फ x इक्वल टू 0 ही है जिहदे उपर फंक्शन सॉरी x इक्वल टू 1 ही है जिहदे उपर फंक्शन जिहड़ा है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। बाकी सारे पॉइंट्स के उपर लैस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। हुण अगर आप ग्राफ कढ़ना होवे तो किवें कढ़ोगे? आ तुहानूं दिता है x y फंक्शन आप एवें लिखते ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y की वैल्यू x प्लस 2 है, कदों है? जदों आप x लेस देन 1 जा रहे हैं, ठीक है, और इक्वल टू 1 के उपर 0 है। और आ वैल्यू कदों है? जदों आप x ग्रेटर देन 1 वाल जा रहे हैं, इधर वाल और फिर इधर वाल, ठीक है। और y एक्स एक्सिस के उपर y कितना होंदा है? 0, तो इत्थे कड्डो फिर एक्स एक्सिस के उपर y अपनी जो y 0 पुट करांगे तो x की वैल्यू केड़ी केड़ी आएंगियां? x आएगा -2, कदों? जदों x लेस देन 1 है, ठीक है। और x इक्वल टू 2 आएगा वैन x ग्रेटर देन 1 है। तो ग्राफ के उपर तुहानूं समझ आ ही गया होना है, -2 तक जाना है और +2 तक जाना है। इधर तो यह हो गया। हुण मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम और मिनीमम वैल्यू। इत्थे जो 1 भरांगे तो 3 आएगी और मिनीमम वैल्यू कितनी आएगी? -1 किहदी? y दी। तो इत्थे तो 3 आ गई, ठीक है, 1 दे लई 3 है, बिल्कुल सेम ग्राफ है जो पहले बनाया सीगा। और मिनीमम वैल्यू कितनी है? -1, नीचे है -1, ये y एक्सिस है ना, ठीक है। आ बन गई अपने को बिल्कुल सेम वैल्यू। और जो 1 भरते हैं तो आती है 1 और 3, और फिर जो नीचे वाले 1 भरते हैं तो कितना आता है? x1 तो y -1। आ देखो 2 डिसकॉन्टीन्यूअस पॉइंट आ गए ना, आ चीज़ है 1 और -1, तो ये अलग अलग 2 डिसकॉन्टीन्यूअस पॉइंट आ गए। ए वाला पॉइंट कदों है? जदों आप लैस देन 1 जा रहे हैं, x लेस देन 1 वाल, तो इधर जा रहे हैं आप, ठीक है। और आ वाला कदों है? जदों आप ग्रेटर वाल जा रहे हैं, ठीक है। आ चीज़ इत्थों ही स्टार्ट करते हैं 1 और 3,
तो बिल्कुल जो आप 10th क्वेश्चन किया सीगा ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ दिस इज द ग्राफ ऑफ द डिसकंटिन्यूटी तो x इक्वल टू 1 इज द ओनली डिसकंटिन्यूअस पॉइंट समझ आ गया होना दिस इज योर 11th एग्जाम्पल मैं दोनों एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ करवा दी ने 10th और 11th जिहदे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राफ भी बना रहा आ रहा है और ऑन द सिमिलर लाइन्स 12th क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस fx having two values when x is less than 1 x plus 2 and when x greater than 0 ਤਾਂ its value is minus x plus 2 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ तो एग्जाम्पल नंबर 12th इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एक तो x तो मतलब 0 तो घट वाले पॉइंट्स ने और एक 0 तो वड्डे वाले पॉइंट्स ने बट 0 वाली ये डोमेन वैल्यू नहीं है यानी कि x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स आप नहीं लेने ठीक है और डोमेन दे विच है ही नहीं ठीक तो बस तुसी फिर इत्थे C नूं कंसीडर कर लो फिर फस्ट केस दे विच लेट C इज़ लैस दैन 0 तो फंक्शन की वैल्यू की आएगी फिर लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेज टू C fx x अप्रोचेज टू C x प्लस 2 दिस इज C प्लस 2 और C लैस दैन 0 वास्ते FC की वैल्यू कितनी आएगी इत्थे ही भरांगे लैस दैन 0 वास्ते तो वह भी C प्लस 2 आ जाएगी ठीक है तो आ दोनों बराबर आ गए सो फंक्शन इज fx इज continuous for all real numbers या all negative real numbers ऐ लिख लो ना all negative real numbers right हुण सेकंड केस ले लो let c is greater than 0 greater than 0 के लिए भी बिल्कुल सेम काम है x approaches to c आ वाली वैल्यू लवांगे ਉਹਦੀ फंक्शन दी x approaches to c when c is greater than 0 so we have minus x plus 2 and after putting the value of the limit minus c plus 2 और fc की वैल्यू केड़ी आ जाएगी फॉर ग्रेटर दैन 0 के लिए वो भी सेम आ जाएगी सेम आ गई ना तो फिर सेम ही लिखोगे fx is continuous for all positive real numbers तो फिर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जीरो नहीं दिखा रखा एक्स जीरो का मतलब की होंदा है कि वाई एक्सिस है ना तो यदा मतलब है जो आप ग्राफ बनावांगे तो रियल दे विच क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है ना तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ठीक है तो वो वाई एक्सिस नूं टच नहीं करेगा हुण इहदा ग्राफ बनाने की देखते हैं आप देखो ध्यान नाल लैस दैन 0 पासे जा रहे हैं आप आ इधर वाई की वैल्यू की है y is a function of x this is equal to x plus 2 और कदों है जदों x less than 0 है और y is fx this is minus x plus 2 when x is greater than 0 ठीक है तो ਇਹਦਾ ग्राफ आप बनाने आ देखो तो पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तुसी ले लो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब की होंदा है कि इत्थे आप 0 पुट करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी जो 0 पुट करांगे तो 2 आ जाएगा मैक्सिमम 2 वैल्यू आएगी ठीक है एस दे विच चाहे आप एक्स नैगेटिव पॉइंट्स ले रहे हैं एक्स तो 0 तो घट वाले पॉइंट्स ले रहे हैं या 0 तो बड़े वाले पॉइंट्स ले रहे हैं वाई की वैल्यू जी है वो मैक्सिमम कित तक जाती है सिर्फ 2 तक इत्थे वैसे देखा जाए तो तुसी जिहड़ा हैगा 0 नूं काउंट नहीं करना क्योंकि इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स अपने कोल नहीं है बट मैं तुहानूं सिर्फ वाई की मैक्सिमम वैल्यू कड्ढण नूं कह रहा सिर्फ इट्स अ रफ वर्क ठीक है तो रफ वर्क के लिए तुसी एक्स की वैल्यू इत्थे रफली 0 पुट करके देखो तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों केसिस दे विच वाई की 2 ही आती है चाहे आप नैगेटिव पॉइंट्स वाल देख लीए चाहे पॉजिटिव पॉइंट देख लीए यानी कि चाहे इधरला पासा देख लो चाहे इधरला पासा देख लो वाई जिहड़ा हैगा वो मैक्सिमम 2 तक ही जाएगा ठीक है हुण आप देखते हैं कि एक्स एक्सिस उपर की हाल है एक्स एक्सिस के उपर वाई की वैल्यू कितनी होंदी है 0 है ना तो फॉर वाई इक्वल टू 0 इत्थे 0 पुट करांगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0 पुट किया एक्स की वैल्यू आ गई नैगेटिव -2 कदों है इफ एक्स इज लैस दैन 0 यानी कि इस तरफ के पॉइंट्स जिहड़े ने
ਉਹ -2 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ और फॉर y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस के उपर ही x ग्रेटर दैन 0 x ग्रेटर दैन मतलब राइट साइड वाले पॉइंट्स तो उतों जो आप y 0 पुट करते हैं तो इतने x की वैल्यू कितनी आएगी -x इज -2 और माइनस विल कैंसल तो x की वैल्यू आ जाएगी +2 इफ x इज ग्रेटर दैन 0 ऐसा मतलब आ वाला पॉइंट ठीक और y तरफ कितने जाते हैं सिर्फ इत्थे हुण जे x 0 होवे ਤਾਂ y 2 है ना एग्जैक्टली बट इत्थे अपने को x 0 है ही नहीं ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਚਾਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਲੋ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ और इतों शुरू कर रहे हैं ਇਹਦਾ मतलब की है कि विच आप 2 नहीं लै रहे है ना इतने x 0 के बराबर नहीं ना है अपने को है नहीं 0 वाले पॉइंट नहीं है इस करके y एग्जैक्टली 2 नहीं होएगा 2 तो घट वाले पॉइंट होंगे तो इतों शुरू करते हैं यदा विच इनकलूड होएगा आधा डार्क सर्कल है और इतों जाते 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 इत्थे तक आएगा बस इतने कट नहीं करेगा इनू ठीक है तो आ वाला आ सर्कल अपने को आ ग्राफ बन गया और दूसरे पासे कित तक जा रहा है उत्थे भी y जो है मैक्सिमम 2 तक ही जा रहा है और राइट साइड का अगर आप देखिए आ वाला जो साइड सी ये साइड केड़ी है तो तुम चाहे नीचे ले आओ अगे भी बढ़ा लो तो ये जी साइड है x लैस दैन 0 वाली है और आ वाली साइड केड़ी है x ग्रेटर दैन 0 वाली है और y तो ऊपर 2 तक ही जा रहा है मैक्सिमम ठीक है आ चीज़ हुण आ भी डार्क सर्कल है क्योंकि 2 आ रही है वैल्यू राइट और इनू अगे ले आओ तो आ वाला ग्राफ किहड़ा आ गया फिर अपने को आ ग्राफ आ गया x ग्रेटर दैन वाला ठीक सो दिस इज अच्छा अगर आपां इत्थे देखिए कि अगर x 0 लईए तो 0 के उपर देखो क्योंकि पेन चकना पै गया ना कॉन्टीन्यूअस का मतलब की होंदा है कि लगातार ग्राफ बनता रहे और डिसकॉन्टीन्यूअस का मतलब की होंदा है कि एक बार विचों ब्रेक देता और फिर इधर नूं आ गए तो इत्थे ब्रेक आ गया ना किहड़े पॉइंट ते ब्रेक आया जदों x 0 सीगा ताई करके उन्हें x 0 वाला पॉइंट इत्थे लिया ही नहीं और अगर तुसीं इत्थे ग्राफ तो भी चेक करो और दसना चाहो देखो एक इस तरह का भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है थानू ग्राफ दे देगा और वो कहेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी तो देखते नाल ही जिथे भी तुहाडा देखो कॉन्टीन्यूअस का मतलब की है जो आप ग्राफ बना रहे हैं तो कॉन्टीन्यूटी कित्थों आ रही है इत्थों आप पिछों दी जा रहे हैं इनफाइनाइट जा रहे हैं ठीक है आ जा रहे हैं क्योंकि लैस दैन का मतलब की है इनफाइनाइट पॉइंट ही ने 0 तो लैस वाले जिन्ने मर्जी ठीक है तो आ इनफाइनाइट तो आ रहे हैं आप और इधर जा रहे हैं इत्थे जाने तो बाद x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिती नहीं हुई तो इत्थे जाके पेन अपना रुक जाएगा ठीक है कॉन्टीन्यूटी हट गई फिर दूसरे पासे आ गए पेन रुक गया ना तो इधर आ गए तो डिसकॉन्टी किस पॉइंट के उपर डिसकॉन्टीन्यूटी आई x 0 ते तो तुसीं ग्राफ नूं देखदे नाल ही दस सकते हो कि एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस बट बाकी सारे पॉइंटों के उपर फंक्शन की है कॉन्टीन्यूअस किहड़े पॉइंटों के उपर लैस दैन 0 वाले पॉइंटों के उपर देखो लैस दैन 0 का मतलब है तुसीं जिन्ना मर्जी इहनूं वधा लो तुहाडा पेन उठेगा नहीं लगातार कॉन्टीन्यूअस जा रहा है और ग्रेटर दैन 0 के उपर भी तुहाडा पेन जिहड़ा है वो बिल्कुल रेगूलरली जा रहा है जिन्ना मर्जी अगे तुसीं इहनूं वधा लो दैट इज़ अगेन कॉन्टीन्यूअस पॉइंट तो लैस दैन 0 वाले पॉइंट भी कॉन्टीन्यूअस ने ग्रेटर दैन वाले भी कॉन्टीन्यूअस ने बट एट x इक्वल टू 0 का मतलब है x 0 कितने होंदा है y एक्सिस के उपर तो इस जगह के उपर फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस है राइट सो दिस इज़ आवर एग्जाम्पल नंबर 12 बड़ा ही डिटेल मैं तुहानूं दस रहा तो तुसीं इहनूं ध्यान नाल समझो एक अद्धी बार तो चलो मेरे तुहानूं समझाउण नाल समझ आ जाएगा लेकिन तुसीं अपने आप क्वेश्चनस नूं कदों सोल्व कर पाओगे जदों इन्हां दी तुसीं बार बार रिवीजन करोगे राइट सो लैट्स मूव टूवर्ड्स आवर 13th एग्जाम्पल देखो हुण 13th एग्जाम्पल दे विच थानू उन्हें जो दिता होया है मैं थानू थोड़ा जा इहदा काम तो सेम ही है लगभग ठीक है 13th एग्जाम्पल दे विच आपां नू कह रहा वो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय x स्क्वेयर इफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड इफ x इज लैस दैन 0 राइट हुण आ वाली एग्जाम्पल देखो आप कदों की सी एफ एक्स इज इक्वल टू x
और fx इज इक्वल टू एक्स स्केयर। आ एग्जाम्पल कदों कदों कीतियां ने, ये आप एग्जाम्पल्स कीतियां सी एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 6 और आ की एग्जाम्पल नंबर 6 ये तुसी चैक करना, उहदे तो तुसी चैक कर सकते हो कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, राइट। और जदों ग्रेटर दैन 0 वाली गल आती है या इक्वल टू 0 वाली गल आती है तो उत्थे तुसी लैफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नू कढ़ के पता करो कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो लैफ्ट हैंड लिमिट अगर आप कढ़ांगे तो एक्स अप्रोचिज टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस वास्ते फंक्शन की वैल्यू कितनी है एक्स स्केयर दे विच 0 भरांगे तो कितनी आ गया 0, ओके। 0 प्लस वास्ते फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस वास्ते एक्स है तो एक्स दे विच 0 भरांगे तो कितनी आ गई 0, और खुद फंक्शनल वैल्यू कितनी है वो भी 0 है। तो फिर एट 0 के उपर भी फंक्शन जोड़ा है वो कंटिन्यूअस है, राइट। हुण इहदा ग्राफ जोड़ा है वो तुसी बड़े ही समझ जिवें जिस तरीके मैं तुहानूं दस्सिया उस तरीके नाल तुसी जोड़ा हैगा इहदा ग्राफ बना सकते हो। एग्जाम्पल 14 विच तुहानूं कह रहा है कि एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, ये तुसी प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो पॉलीनोमियल फंक्शन तुहानूं पता ही है n पावर का अगर आप लैने तो की बनता है वो ए नॉट एक्स पावर n, a1 एक्स पावर n-1, a2 एक्स पावर n-2 एंड सो ऑन an-1 x प्लस an क्या है, these are coefficients and these are positive integers, you can say that, or real numbers, and x is a variable, ठीक है। और इत्थे जो an है यानी कि a नॉट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अ कोफिशिएंट ऑफ xn, राइट। हुण कंटिन्यूटी चैक करने के लिए की करांगे, एक पॉइंट आप ले लेने जिहदे पर आप चैक कर रहे हैं तो x अप्रोचिज टू c px, तो की आ जाएगा हर एक जगह पे c भर दो बस, ठीक है। a नॉट cn, a1 cn-1, ठीक है, a2 cn-2 एंड सो ऑन प्लस an, ठीक। हुण pc कढ़ लो, pc का मतलब है एट x इक्वल टू c कढ़ो, वैल्यू कढ़ो तो भी तो यही आएगा, सेम आएगा ना। सो pc विल आल्सो बी इक्वल टू limit of x approaches to px, limiting value is equal to the value of the function at c, this means that px is continuous, बस आप प्रूफ करके दिखाना सीगा। सो एवरी पोलिनोमियल इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एग्जाम्पल 15 दे विच की कह रहा है कि अपने कोल एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इट इज आस्किंग यू टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नूं और दे ग्राफ नूं समझण दे लई तुसी मेरा लैक्चर हैगा +1 दा टाइप्स ऑफ फंक्शनस, रिलेशनस एंड फंक्शनस वाले चैप्टर दे विच टाइप्स ऑफ फंक्शन का टॉपिक जो है वो तुसी बड़े ध्यान नाल कर लो। मैं एस एग्जाम्पल दे लई पर्टिकुलर या एस टॉपिक दे लई, क्योंकि आप करता फंक्शनस ही रहे हैं है ना, तो उन्होंने कंटिन्यूटी चैक कर रहे हैं, उन्होंने डिसकंटिन्यूटी चैक कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ फंक्शनस तो आने चाहिए हैं, जिवें कॉन्स्टेंट फंक्शनस की एग्जाम्पल्स भी आपां कीती है, आइडेंटिटी फंक्शनस की भी कीती है एग्जाम्पल्स। तो एटलीस्ट तुसी वो एक बारी जो है +1 का जो मेरा वीडियो है रिलेशनस एंड फंक्शन के उपर और जो फंक्शनस का खास तौर पर टाइप्स ऑफ फंक्शनस का जो टॉपिक है वो तो मैं लिंक ये पा दाँगा, तो वो तुसी चंगी तरह उन्होंने करो तो तुहानूं जाके आ वाला भी टॉपिक समझ आ जाएगा। और टाइप्स ऑफ फंक्शनस दे विच मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नाल उहदे विच और बहुत ज़्यादा डिटेल विच मैं समझाया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनस का ग्राफ किजा बनता है, ठीक है। वो तुसी देखोगे तो तुहानूं आ क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा, इतों पता लग जाएगा कि हर एक इंटीग्रल वैल्यू जो है वो डिसकंटीन्यूअस पॉइंट ही है। हुण इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब की होंदा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होंदा है कि जो तुहानूं इत्थे डोमेन वैल्यू दी हुई है, एक्स कित्थों वेरी कर रही है -2 तो लैके 1 तक, और -2 इक्वल है, यानी कि -2 लवेगा लेकिन एक विच इंक्लूड नहीं है। इत्थे -1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 है 1 नहीं है, 1 इंक्लूड है 2 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है 3 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो -2 और 1 दे विच फंक्शन की वैल्यू कितनी है -2, -1 और 0 दे विच कितनी है -1,
0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ -2 ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, -2 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ -2 ਤੋਂ -1 ਦੇ ਲਈ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -2, ਇੱਥੇ ਹੈ -2, ਔਰ ਆ -2 ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ -1 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ y ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਓਪਨ ਸਰਕਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ -1 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ -2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ -1 ਔਰ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ -1 ਹੈ ਔਰ ਆ ਹੈ 0, ਰਾਈਟ। -1 ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, 0 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी है -1। आ चीज़ आ है फंक्शन की वैल्यू, आ देखो -1। ठीक है, इत्थे डार्क सर्कल खिंचो और x 0 तो घट है। ठीक है, तो इत्थे ओपन सर्कल खिंच दो, ये ओपन सर्कल हो गया। और वैल्यू क्या है y की वैल्यू कितनी है -1। हुण आ जाओ 0 तो 1 दे विच, x 0 का मतलब आ चीज़। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, ਔਰ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਆ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ fx ਦੀ, fx ਮਤਲਬ y ਦੀ। y ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। 0 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ y x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਓਪਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ 1 और 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 और 2 ਆ ਹੈ x1 और ਆ ਹੈ 2, और y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। ਆ 1 ਇੱਥੇ ਖਿੱਚੋ 1 और 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ, और 2 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਓਪਨ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, और ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1 और 2 ਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ 1 ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ 1 to 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 to 2 ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 2 to 3 ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, 2 to 3 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, y ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2 ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਔਰ 3 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ओपन सर्कल 3 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, और वैल्यू की है फंक्शन ਦੀ 2। ठीक है, इस तरह ਤੁਸੀਂ सो ऑन ਦਾ मतलब है आ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 इज़ लैस दैन x, x इज़ लैस दैन 4, और इंटीग्रल वैल्यू ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ 3। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ +1 ਦਾ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब समझ आ जाएगा। मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ -2 ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ -2 ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 1 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ -2 ਔਰ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਡੈਸੀਮਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆ -2 ਔਰ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -1.9, -1.8, है ना। फिर ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1.7, 1.6, ਇਹ ਚਲਦੇ 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 ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ, है ना। 1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ -2, ਤਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਲੈ ਲਿਆ। 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 0 ਔਰ 1 ਦੇ 1.9 ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਨਾ। 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 0.9 ਆਏਗਾ, 0.9 ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, 1 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 0.1, 0.2, 0.3, है ना। लेकिन इंटीजर केड़ा 0, तो 0 ले लिया फिर, वो मतलब है। हुण
तो जिवें तुसीं दस्सिया थानू मैं कि 3 और 4 दे विच भी लै लो तो 3 और 3 इनकलूड है, 4 इनकलूड नहीं है। तो 3 और 4 दे विच कितों स्टार्ट होएगा? 3.1 3.2 3.9 है ना, और इत्थे 3। तो सब तो वड्डा इंटीजर किहड़ा है इहदे विच? इंटीजर किहड़ा है? यानी कि 3 है बस। तो 3 ले लिया। फिर इंटीजर मतलब होल नंबर, डेसीमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इत्थे जो आप देखांगे 3 और 4, 3 और 4 एक्स की वैल्यू तो आ है, और एफ वाई की वैल्यू कितनी है? इत्थों इनू आप डार्क ले लांगे और 4 नू जो है वो लाइट ले लो, है ना, ओपन ले लो, तो आ गई फंक्शन की वैल्यू। बोलो समझ आया? हुण हर एक पॉइंट के उपर तुसी देखोगे इत्थे वाई की वैल्यू कितनी सीगी? -2, इत्थे कितनी है? -1, इत्थे कितनी है? 0, इत्थे वाई की वैल्यू 1 है, इत्थे 2 है, इत्थे 3 है ना। हर एक पॉइंट के उपर ये सारे पॉइंट डिसकंटीन्यूअस ही ने। क्यों डिसकंटीन्यूअस ने? जदों भी मैंने उन्होंने ग्राफ बनाना पिया, मैंने अपना पेन उठाना पिया, चकना पिया पेन, है ना, ऊपर लाइक कंटिन्यूटी नहीं आई। और जेड़े भी पॉइंट्स आ रहे हैं सारे इंटीग्रल पॉइंट आ रहे हैं, और सारे के सारे डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यदा मतलब ये फंक्शन अपने आप ही डिसकंटीन्यूअस है, और सारे इंटीग्रल पॉइंट्स तुसी लिख दोगे ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी, ठीक। हुण जो मैं तुहानूं इहदी समझा दिता है, बस इहदी तुसी थ्योरी लिखनी है, वो अगले पेज उपर आपां नूं दित्ती हुई है, वो तुसी थ्योरी एज इट इज़ तुसी वैसे इहदा आ लिख दो और ग्राफ बना दो, और तां भी तुसी लिख सकते हो डायरैक्टली कि ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दैट इज योर आंसर एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके।